Hello, listening friends, and welcome to this last message in our series, What Does Jesus Think? श्रोता मित्रों नमस्कार और हमारी इस संदेश श्रृंखला यीशु क्या सोचता है कि इस अंतिम संदेश में आपका स्वागत है। And today we are completing our study of the Church of Laodicea. और आज हम लौदीकिया की कलीसिया के अपने अध्ययन को पूरा करेंगे। We saw that Jesus is basically saying three things. हमने देखा कि मूल रूप से यीशु तीन बातें कह रहा है। First, he alerts the people to their disastrous condition. सबसे पहली वो लोगों को उनकी विनाशकारी दशा से सचेत करता है। Secondly, he advises them to turn away from their disastrous condition. दूसरी वो उन्हें उनकी विनाशकारी दशा से फिरने की सम्मति देता है। And thirdly, he awards them if they renounce their disastrous condition. और तीसरा, यदि वो अपनी विनाशकारी दशा को त्याग देते हैं तो वो उन्हें प्रतिफल देता है। First, he alerts the believers. सबसे पहले वो विश्वासियों को सचेत करता है। The truth is, most of us have some blind spots. सच्चाई ये है कि हम सब में कुछ छिपे हुए दाग होते हैं। And none of us can see our own blind spots without help. और हम में से कोई भी बिना किसी की मदद के अपने छिपे हुए उन दागों को नहीं देख सकता। Otherwise, they would not be called blind spots. वरना इन्हें छिपे दाग नहीं कहा जाता। Someone has to point out our blind spots to us. किसी को हमें हमारे वो छिपे हुए दाग दिखाने पड़ते हैं। There are two possible reactions when somebody points out our blind spots to us. जब कोई हमें हमारे छिपे हुए दाग दिखाता है तो संभवतः दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। There is a godly reaction and an ungodly reaction. एक धर्मी प्रतिक्रिया है और दूसरी अधर्मी प्रतिक्रिया। When the godly person is confronted by their blind spot, जब एक धर्मी जन को उसके छिपे हुए दाग का पता चलता है, he or she goes to the Lord and examines themselves before God. तो वो जन परमेश्वर के समक्ष जाकर अपने आप को जांचता या जांचती है। But the ungodly, on the other hand, becomes angry with the very person who tries to help him. परंतु दूसरी तरफ अधर्मी जन उसी व्यक्ति से क्रोधित हो जाता है जो उसकी मदद करने का प्रयत्न करता है। And there is also a third group that is made up of people who do not react one way or the other. और एक तीसरा समूह है जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते। It's like the man who said, I'm neither for nor against apathy. ये उस व्यक्ति के समान है जो कहता है, मैं ना तो जड़ता के विरुद्ध हूं और ना ही इसके पक्ष में हूं। The resurrected Christ is telling the members of this church of the city of Laodicea, पुनरुत्थित मसीह लौदीकिया शहर की इस कलीसिया के सदस्यों से कह रहा है, your blind spot is that you are not realistic in your self-assessment. तुम्हारा छिपा हुआ धब्बा ये है कि तुम अपनी जांच में व्यवहारिक नहीं हो। He is saying to them, you are smug with your self-satisfaction. वो उनसे कह रहा है कि तुम अपनी आत्मतृप्ति से संतुष्ट हो। You are resting on your worldly reputation. तुम अपनी सांसारिक प्रतिष्ठा पर टिके हुए हो। You are placing your confidence in your material resources. तुम अपना विश्वास अपने सांसारिक संसाधनों में रखते हो। You are puffed up with your own worldly wealth. तुम अपनी सांसारिक समृद्धि के कारण फूल गए हो। In other words, you are blind to your true condition. दूसरे शब्दों में तुम अपनी असल दशा के प्रति अंधे हो गए हो। In other words, you are blind to your true condition. दूसरे शब्दों में तुम अपनी असली दशा के प्रति अंधे बन गए हो। You may be materially rich, but you are spiritually homeless and penniless. संसारिक रूप से तुम धनवान होगे, परंतु आत्मिक रूप से तुम बेघर और निर्धन हो। You may be all dressed up in designer suits, but you are shamefully naked. तुम बहुत आकर्षक कपड़े पहनते होगे, परंतु असल में तुम लज्जाजनक रूप से नंगे हो। You may be able to boast about your eye salve, तुम अपने आंखों के सुरमे की खोज के लिए घमंड कर सकते हो, but you are truly blind to what really matters. परंतु जो बात वास्तव में मायने रखती है उसके प्रति तुम अंधे हो। My listening friends, I want to tell you, all sins are infectious. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब पाप संक्रामक होते हैं, But pride is the most infectious and dangerous sin of all. परंतु घमंड सबसे अधिक संक्रामक और खतरनाक पाप है। And Jesus had to speak bluntly to them as if to say, wake up. और यीशु को बहुत रूखेपन के साथ उनसे ये बात कहनी पड़ी, जैसे कि वो कह रहा हो, जाग जाओ, Face the facts. सच्चाई का सामना करो।
You are a beggar in spite of your banks. तुम अपने बैंक खातों के बावजूद भी भिखारी हो। You are blind in spite of your eye powder. तुम अपने आंखों के सुरमे के बावजूद भी अंधे हो। You are naked in spite of your clothing manufacturing companies. तुम अपने कपड़ा उत्पाद उद्योगों के होते हुए भी नंगे हो। Christ alerts them. मसीह उन्हें सावधान करता है। Secondly, he advises them. दूसरा, वो उन्हें सम्मति देता है। In verse 18 he says, I counsel you. 18 पद में वो कहता है, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं। Verse 18 is truly a remarkable verse. 18 पद सच में एक अद्भुत पद है। The God who said, let there be light, and there it was. वो परमेश्वर जिसने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। The God who clicked his fingers and the orbits and the galaxies began to revolve. वो परमेश्वर जिसने अपनी उंगलियां हिलाई और आकाश मंडल और आकाश गंगाएं घूमने लगी। That same God says, I counsel you. वही परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं। He could have said, I order you. वो कह सकता था, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। He could have said, I demand of you. वो कह सकता था, मैं तुमसे ये चाहता हूं। He could have said, I command you. वो कह सकता था, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। But no, he said, I advise you. परंतु नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं। Why? क्यों? Because God respects the freedom that he has given us. क्योंकि परमेश्वर उस स्वतंत्रता का आदर करता है जो उसने हमें दी है। I know that when you pray for someone who is living in foolishness, मैं जानता हूं कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो मूर्खता में जी रहा है, and his or her foolishness is hurting other people left and right, और उसकी मूर्खता के कारण उसके आसपास के लोगों को चोट पहुंच रही है, our prayer is often, God, stop them. तो अक्सर हमारी प्रार्थना ये होती है, परमेश्वर उन्हें रोक। And God says, I am speaking to that person. और परमेश्वर कहता है, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं। We say, God, stop them. हम कहते हैं, परमेश्वर उन्हें रोक। And God says, I am sending them various messages and messengers. और परमेश्वर कहता है, मैं उनके पास कई संदेश और संदेशवाहकों को भेज रहा हूं। We pray, God, stop them. हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें रोक। But God says, I am counseling them. परंतु परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें सम्मति दे रहा हूं। Listen to me very carefully, my listening friends. मेरे श्रोता मित्र, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। God can terrify us, but he doesn't. परमेश्वर हमें भयभीत कर सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता। God can order us, but he doesn't. परमेश्वर हमें आज्ञा दे सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता। He prefers first to counsel us. वो पहले हमें परामर्श देना पसंद करता है। He prefers first to call us. वो पहले हमें बुलाना पसंद करता है। He prefers first to guide us. वो पहले हमारा मार्गदर्शन करना पसंद करता है। He prefers first to lead us. वो पहले हमारी अगुवाई करना पसंद करता है। Oh, to be sure, there is a tragic end and bad consequences when we persist in ignoring his counsel. ओह, लेकिन निश्चय है कि जब हम उसके परामर्श को निरंतर अनदेखा करते जाते हैं, तो इसके बुरे परिणाम और दुखद अंत होता है। So, what is he counseling these people to do? तो वो इन लोगों को क्या करने की सम्मति दे रहा है? To come and buy from him true gold that will truly enrich them. उसके पास आकर वो सच्चा सोना खरीदने की, जो उन्हें वास्तव में धनवान बनाएगा। To come and buy from him real clothes that will cover their shame and sin. उसके पास आकर वो असली कपड़े खरीदने की सम्मति, जो उनके पाप और शर्मिंदगी को ढांपेंगे। To come to him and buy good eye drops that will open their spiritually blind eyes. उसके पास आकर वो अच्छी दवाई खरीदने की सम्मति, जो उनकी आत्मिक रूप से अंधी आंखों को खोलेगी। Some of you may have perked up your ears and asked, did Jesus say, come and buy? आप में से कईयों ने शायद अपने कानों को सिकोड़ कर कहा होगा, क्या यीशु ने कहा कि मेरे पास आकर खरीदो? Is he saying that you can buy salvation? क्या वो कह रहा है कि तुम उद्धार को मोल ले सकते हो? No, 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 no. नहीं, नहीं, नहीं। In fact, this is the deal of all deals. बल्कि ये सब सौदों से उत्तम सौदा है। This is the bargain of all bargains of all times and in all places. ये किसी भी स्थान में से और किसी भी समय से बढ़कर मुनाफा है। Jesus is saying, come, and in exchange of your sin and shame, I will give you forgiveness. यीशु कह रहा है, आओ और तुम्हारे पाप और शर्मिंदगी के बदले में मैं तुम्हें क्षमा दूंगा। Come,
and in exchange for your pride and arrogance, I will give you my righteousness. आओ और तुम्हारे अभिमान और घमंड के बदले में मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता दूंगा. Come, and in exchange of your misguided pride in your accomplishment, I will give you true peace, and I will give you true peace and contentment that you will never lose. आओ और तुम्हारी उपलब्धियों पर तुम्हारे विकृत घमंड के बदले में मैं तुम्हें वो सच्ची शांति और संतुष्टि दूंगा जो तुम कभी ना खोओगे. Only a foolish person would turn down this deal. केवल एक मूर्ख ही इस सौदे को ठुकराएगा. This exchange is not for equal sums, but instead you give him trash and he gives you true riches. ये अदला बदली बराबर की चीजों की नहीं है, परंतु आप उसे कूड़ा दे रहे हैं और वो आपको सच्ची समृद्धि दे रहा है. In fact, the risen Christ is the one who is doing all the coming to you. बल्कि पुनरुत्थित मसीह स्वयं आपके पास आ रहा है. He is the one who is knocking on the door of your heart. वही है जो आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है. Although he is the master of the house, he does not beat down the door of your heart. यद्यपि वो घर का स्वामी है, वो आपके हृदय के द्वार को जोर जोर से पीटता नहीं है. He gently knocks and then he waits. वो कोमलता से खटखटाता है और फिर प्रतीक्षा करता है. He knocks and then he waits some more. वो फिर खटखटाता है और कुछ देर और इंतजार करता है. And his final decision depends on your opening the door and inviting him in to fellowship with you. और उसका अंतिम निर्णय आपके द्वार खोलने और अंदर आकर आपके साथ संगति करने के आपके निमंत्रण पर निर्भर करता है. So Jesus alerts them, then he advises them, and thirdly he awards them. तो यीशु उन्हें सावधान करता है, फिर वो उन्हें सम्मति देता है और तीसरा वो उन्हें प्रतिफल देता है. He who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne. वो जो जय पाएगा उसे मैं मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा. My listening friend, does not this boggle your mind? मेरे श्रोता मित्र, क्या ये आपके दिमाग को चकराता नहीं है? It does mine. मेरे दिमाग को तो चकराता है. First he says, give me your trash and I will give you gold in exchange. पहले वो कहता है, मुझे अपना कूड़ा करकट दो और मैं बदले में तुम्हें सोना दूंगा. Then he says, if you accept this unbelievable exchange, then you will sit on my throne. फिर वो कहता है, यदि तुम इस अविश्वसनीय अदला बदली को स्वीकार करो तो तुम मेरे सिंहासन पर बैठोगे. This award exceeds all other promises that we have seen so far in this series of messages. ये पुरस्कार उन सब प्रतिज्ञाओं से आगे है जो हमने इस संदेश श्रृंखला में अब तक देखे हैं. It is exceeding in glory and in honor and in authority. ये महिमा, आदर और अधिकार में आगे है. Here is what Jesus is saying. यीशु ये कह रहा है, Let me come into the chambers of your heart and I will let you into my Father's throne room. तुम मुझे अपने हृदय कक्ष में आने दो और मैं तुम्हें अपने पिता के सिंहासन कक्ष में आने दूंगा. You invite me to fellowship with you, not for breakfast or lunch, but for the main meal of every day. तुम मुझे अपने साथ संगति के लिए आमंत्रित करो, सुबह या दोपहर के खाने पर नहीं, परंतु हर दिन के मुख्य भोजन पर. Which means the main foundation of your life. जिसका अर्थ है तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार. And I will have you fellowship with me and my Father forever. और मैं तुम्हें सदाकाल के लिए मेरे साथ और मेरे पिता के साथ संगति दूंगा. You hand me the authority over everything that is important in your life. तुम मुझे अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज पर अधिकार दो. And I will give you authority to judge the universe with me. और मैं तुम्हें मेरे साथ पूरी सृष्टि का न्याय करने का अधिकार दूंगा. What a deal. क्या सौदा है. My listening friends, please listen carefully as I am about to conclude. मेरे श्रोता मित्रों, मेरे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुने. Every one of these 7 messages ends with the following words. इन 7 संदेशों में से प्रत्येक संदेश इन शब्दों के साथ समाप्त होता है. He who has an ear, let him hear. जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले. What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means that you cannot be listening to us and thinking, wow, this message would have been good message for so and so.
इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें सुनते जाएं और ये सोचें कि वाह, ये संदेश फला फला व्यक्ति के लिए एक अच्छा संदेश होना था। You cannot say, this message would have been great for my friend or my brother or my sister or my boss. आप ये नहीं कह सकते कि ये संदेश मेरे मित्र या मेरे भाई या मेरी बहन या मेरे बॉस के लिए अच्छा होना था। Or, I wish that so and so were able to hear this message. या काश फला फला व्यक्ति ने इस संदेश को सुना होता। No. नहीं, Jesus is saying that this is a message for you. यीशु कह रहा है कि ये संदेश तुम्हारे ही लिए है, Not only to hear, but to obey. केवल सुनने के लिए नहीं परंतु मानने के लिए। Jesus is saying that this message is meant for you. यीशु कह रहा है कि इस संदेश का मतलब तुम्हारे लिए है। Every admonition was meant for you. हर निर्देश तुम्हारे लिए ही था, Every promise was meant for you. हर प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए थी, Every encouragement was meant for you. हर प्रोत्साहन तुम्हारे लिए था। He who has ear, let him hear. वो जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। This refrain means that Jesus' message to the 7 churches are meant not only for the members of those churches, इस बार बार कहे गए वाक्य का अर्थ है कि यीशु के उन 7 कलीसियाओं को दिए गए संदेश केवल उन कलीसियाओं के सदस्यों के लिए ही नहीं है, but also they are meant for everyone who reads and hears these words. परंतु हर उस जन के लिए भी हैं जो इन वचनों को पढ़ता और सुनता है। They are meant for you, my friend. ये आपके लिए है मेरे मित्र। He who has ear, let him hear. जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। And my prayer is that you have heard, और मेरी प्रार्थना है कि आपने सुन लिया हो and that you will respond to the words of Jesus. और आप यीशु के वचनों का प्रत्युत्तर दें। Until next time, with a new series of messages, I wish you God's richest blessing. अगली बार एक नई संदेश श्रृंखला के साथ मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।